Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English Inside News and I'm Sandeep. These are the details. After his meeting with the Election Commission, AAP National Convener Arvind Kejriwal thanked the Election Commission for making an exception to meet them during the silent period, as they typically do not entertain political parties during this time. He raised concerns about violence and hooliganism in certain areas, with the EC assuring strict action to ensure unbiased elections. Kejriwal also wanted the Election Commission about the possibility of the large-scale voter suppression, alleging that the people's fingers could be forcibly inked and they could be threatened into not voting on the day of the election. हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। हमने ये भी बताया कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर वोटर सप्रेशन हो सकता है, जैसे इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग घर से निकल सकें। और तीसरी बात थी कि ये आशंका है कि बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो इतने शॉर्ट नोटिस में हमसे मिले। Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde presented the state's 74,427 crore budget, highlighting a 14.19% decrease over his previous budget. He emphasized that the budget is aimed at benefiting common citizens, including the students, Mumbaikars, women, the poor, entrepreneurs, and sectors like education, medical aid, and infrastructure. Shinde pointed out that 58% of the expenditure, approximately Rs 43,000 crore, is dedicated to development projects. He also noted a rise in the income by 7,000 crore, creating the Mahayuti government for eliminating corruption in the Brihan Mumbai Municipal Corporation, which is BMC. Addressing the issue of Mumbai's infrastructure, Shinde announced that under the leadership of Chief Minister Devendra Fadnavis, the government is undertaking a two-phase project to concretize the city with the goal of making Mumbai the pothole-free within the next 2 years. कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी, करवाड़, दरवाड़, कोई भी भुगतान, कोई भी शुल्क बढ़ाने का काम नहीं करते हुए ये बजट जो है सर्वसामान्य नागरिक के लिए लोकाभिमुख है। 74,427 करोड़ का ये बजट है और ये बजट 9,000 करोड़ से ज्यादा है। पिछले बजट से 14.19% ये बढ़ोतरी है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे साइन है और इसलिए मुंबई बड़े तेजी से डेवलप हो रही है। यहाँ पर विद्यार्थी है, मुंबईकर है, गरीब है, कष्टकरी है, महिलाएं हैं, उद्योजक है, आरोग्य सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, ये सभी और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे काम किया है। और कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी, करवाड़। Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, during the launch of Nadi Jodo Abhiyan in Harda, criticized Congress for allegedly failing the support of the state's farmers. While Congress raised the relevant issues, it was through Prime Minister Narendra Modi's efforts that Madhya Pradesh received 1.75 crore for the Ken and Betwa rivers. Yadav emphasized that this initiative would help
irrigate 1 lakh hectare of land and transform the lives of the people, marking a significant step towards agricultural and economic development. पूरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था, थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती टक्कर में पड़ते पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu stated that 50% of the BJP MLAs has reached out to him to express their desire to attend meeting and present their issues before the officers. Sukhu further revealed that the MLAs even conveyed this to Jairam Thakur, the leader of opposition in the assembly, but were discouraged due to Thakur's stubborn attitude. The CM claimed that this attitude led to MLAs to walk out of the assembly and skip the meeting, adding that they would now be able to raise the issues pertaining to their constituencies. 50% विधायकों ने मुझसे संपर्क किया कि हम आना चाहते थे। जयराम ठाकुर जी को हमने कहा कि हमें जाना चाहिए, अधिकारियों के सामने हमें बात रखनी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि जयराम ठाकुर जी का जो अड़ियल रवैया है उसके कारण उन्होंने कहा कि हमें वॉकआउट करना चाहिए और इस बैठक में नहीं जाना चाहिए। उस अड़ियल रवैये के कारण कुछ विधायकों को उनकी तकलीफ हुई है और ये निश्चित है, आप देख ही रहे आए दिन उनके कोई न कोई वरिष्ठ नेता इनके स्टेटमेंट देते रहते हैं किसी, और ये कारण क्या है? ये कारण इनको ढूंढना चाहिए और जनता की समस्याओं के लिए सरकार की जो भी बैठकें होती है उसमें इनको आना चाहिए। सर, बहिष्कार से इम्पैक्ट क्या मानते हैं आप? बहिष्कार से इम्पैक्ट क्या होगा? उनके विधानसभा क्षेत्र की जो बात रखना चाहते थे सरकार के सामने वो नहीं रख पाएंगे। हमें तो उन विधानसभा क्षेत्रों में भी काम करेंगे। मैं सब विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अभी मैं दौरा भी करूंगा और उनको हमने दिया है पक्का के। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has voiced his opinion on the upcoming Delhi election 2025, asserting that the winds of change are sweeping through the city. He criticized the Aam Aadmi Party government for failing to deliver on its promises over the past decade, claiming that their pledges has been hollow. Dhami highlighted the lack of progress in crucial areas like the cleaning of Yamuna River and efforts to combat pollution in Delhi. He also pointed to other ongoing corruption scandals involving AAP ministers, including the arrests and legal cases against top leaders such as the Chief Minister, Deputy CM and the MPs, emphasizing the public growing preference for stable governance. Dhami expressed confidence that the double-engine government led by BJP would emerge victorious in Delhi. पूरा माहौल है, कल मतदान भी होना है। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके है। Tripura Chief Minister Manik Saha attended a one-day state-level conference focused on the promotion and the development of cooperatives. The event aimed to discuss strategies and initiatives for the strengthening of the cooperative sector in the state.
by participating in the conference. CM Saha understood the importance of cooperatives in driving economic growth, fostering community development, and enhancing social welfare in Tripura. The conference provided a platform for stakeholders to collaborate and explore ways to improve the cooperative ecosystem. এই ডিপার্টমেন্টের অর্থাৎ কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ মহাথিয়া, যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন বিস্তারিতভাবে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী দিলীপ সাংঘানি, প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, তাকে শর্ট ফর্মে NCUI বলা হয়, এবং ওনার বিস্তারিত ওনার যে কয়েকবার উনি প্রাক্তন MP ছিলেন, মিনিস্টারও ছিলেন গুজরাট গভর্নমেন্টে, আমাদের মাননীয় মোদীজি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সব বিষয়ে আমরা জেনেছি। ওনাকে ত্রিপুরাতে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর সুধীর মহাজন, চিফ এক্সিকিউটিভ ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। উনিও ওনার টেকনিক্যাল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ট্রেনিং থেকে আরম্ভ করে। আমরা এতদিন ধরে কোঅপারেটিভ সম্পর্কে যে একটা মোটামোটা একটা আইডিয়া ছিল, তার বাইরে গিয়েও অনেক কিছু জানার আছে, উনি সেই বিষয়ে আমাদের সামনে রেখেছেন। উনাকে আমি ত্রিপুরাতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী তাপস রায়, সেক্রেটারি এই ডিপার্টমেন্টের কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টে, এবং শ্রী মঞ্চের নিচে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন অনারেবল MLA শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয়, এবং অনারেবল MLA শ্রী মহিলাপুর মহক, এবং বিভিন্ন যে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস আমাদের PSC গুলো আছে, চেয়ারম্যান বৃন্দরা, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, স্টুডেন্টরা এখানে দেখলাম পার্টিসিপেশন করেছে, তারাও এখানে উপস্থিত। আমাদের যারা মেন্টর আছে তারাও এখানে উপস্থিত। এবং Haryana Chief Minister Naib Singh Saini revealed that several important decisions taken in the recent cabinet meeting, the Haryana Wildlife Conservation Bill 2024 was approved, marking a step forward in environmental protection. Additionally, an amount of 3.10 crore will be allocated to Arhithias as compensation for the losses caused by moisture in the Rabi season 24-25. The cabinet also approved an amendment to the Village Commission Lands Regulation Act of 1961. में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ फैसलों के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को उनके ऊपर छोड़ा। आज के जो मंत्रिमंडल के फैसले थे उसमें हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज के लिए पहले क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था, पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था, आज कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav stated that the Uttar Pradesh Chief Minister has not expressed condolences. He mentioned that while the President and Prime Minister of the India had conveyed their condolences, the state government acknowledged it only after 17 hours.
He added that such individuals still found it difficult to accept the truth. कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मुझे समय दिया है। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन एवं अभिवादन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है, कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट आप लोग कुछ मत बोलो, नहीं कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बात मैं बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कि आपने मुझे AAP MP Sanjay Singh alleged that despite Delhi being home to the Parliament, Supreme Court and Election Commission, incidents of hooliganism were occurring openly under the Election Commission watch. He claimed that BJP candidate Ramesh Biduri's relatives were active in Kalkaji while hooliganism was taking place in Jangpura and New Delhi. Singh further criticized the Election Commission, stating that instead of addressing these concerns, an FIR was registered against Chief Minister Atishi when AAP raised the issue. He questioned the credibility of fair elections, suggesting that under such circumstances, the Election Commission role had lost its meaning. तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है, रमेश बिदुड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहां पे, जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का वो रात में घूम के वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है, और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। लेकिन संजय जी, फिर ऐसे चुनाव, अगर आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद भी आप अगर कोई आप लोग हार गए तो आप ऐसी बातें करेंगे? कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है।
60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। अजय माकन कल सवाल खड़े कर रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की भूमिका रही चुनाव में बहुत। अजय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान। Delhi Chief Minister and AAP candidate from Kalkaji Atishi alleged that members of the BJP leader Ramesh Biduri's team were threatening slum dwellers in Kalkaji. She claimed to have GPS tagged photos providing the person named Rohit Chaudhary was present at night during the silence period. Although police initially detained him following AAP's complaint, no action was taken. Atishi further urged that Anuj Biduri, Ramesh Biduri's nephew, was also present, and when SHO arrived, he allowed them to escape in front of everyone. To divert attention, policemen allegedly beat up 2 local boys who were recording the model code of conduct violation and detained them from 1 a.m. to 6 a.m. without filing an FIR or complaint. She criticized the police and election commission for taking action against her instead of BJP workers, accusing the ruling party of engaging in hooliganism. Addressing Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, she urged him to act, stating that democracy was now in his hands. रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहां पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया, डीसीपी को फोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई, लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज है हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi announced that Chief Minister Bhupendra Patel had constituted a committee to draft the Uniform Civil Code. The committee would be chaired by former Supreme Court Judge, retired Justice Ranjana Desai, and included retired senior IAS officer C.L. Meena, Advocate R.C. Kodikar, former Vice Chancellor Dakshesh Thakur, and social worker Geeta Shroff. Sanghvi stated that the Chief Minister had instructed the committee to conduct detailed research over the next 45 days and submit a report to the government. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यूसीसी कमेटी की एक रचना की है। हम सभी ऐसे महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिसका धर्म है भारतीयता और धर्म ग्रंथ है संविधान। भारत का संविधान नागरिक धर्म का वहन करने में सभी का पथ दर्शन करता है। विश्व नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष हम संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसे कॉमन सिविल कोड का देशव्यापी अमल करने का एक फैसला किया है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहना व करना, इस कार्य मंत्र का अनुकरण करने वाली सरकार है। आर्टिकल 370, वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून इत्यादि के लिए जो वादे इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए थे वह एक के बाद एक पूरे किए जा रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री ने कॉमन सिविल कोड का अमल करने के लिए संकल्पबद्ध है। गुजरात प्रधानमंत्री श्री के संकल्पों को साकार करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। आज गुजरात सरकार द्वारा यूसीसी कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। निवृत्त सीनियर आईएएस श्री सीएल मीना जी उसके सभ्य होंगे। एडवोकेट श्री आरसी कोडेकर जी, पूर्व वाइस चांसलर श्री दक्षेश ठाकर जी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री गीताबेन श्रॉफ भी ये कमेटी में शामिल होगी। ये कमेटी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि आने वाले 45 दिन में इसकी डिटेल्ड रिसर्च करके सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। And that's the end of the Inside News. Keep watching CVR News English.